Then I will tell you all the don't care condition in K-map. And if time permits us, I'll start K-map using max terms. Till now, we were doing K-map using min terms. What are min terms? The terms in SOP. The terms which are high in SOP. Plus form. Use in SOP, very correct. And how do you know whether we are working min terms? Ma'am, product form, when we use the product Sigma will be written here. In SOP, which outputs do we consider? high. Very nice. High. So, K-map using max terms only if we have time. Let's just do 2 more examples and then we will start with the don't care condition. Again, this example is using min terms, okay? So we'll have a 16 cell K-map. A is what? MSB or LSB? MSB. And D is? LSB. And K-map, what rule does K-map follow? Rule of adjacency. Rule of adjacency. So I'm just going to number this for both your sake and my sake. Okay, so in these terms we are going to place 1, so 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14 and 15. Correct? Now tell me what will my, just don't randomly tell me what will my first grouping of ones be. We'll go priority wise. We cannot group 16 ones over here because 16 ones are not together. We cannot group 8 ones over here because 8 ones are not together. Next we have, oh, I forgot to start recording. You're supposed to remind me all these when I forget. मैम बोर्ड थोड़ा शाइन कर रहा है। हाँ वो बोर्ड शाइन कर रहा है बिकॉज वहां का लाइट इस पे गिर रहा है, दिख नहीं रहा है क्या? अब ठीक है? Yes, ma'am. अब ठीक है। अच्छा, anyways, so क्या बोल रहे थे? हाँ, so we are going to group 4 ones together. So tell me, this will be one grouping. Any other grouping of 4 ones? From the last 4 ones, 15, 14, 11 and 10. That's called 15, 14, 11, 10. Correct? Okay. We can again group this. Any more grouping of 4 ones? Yes, ma'am. The 4 corners. 8 and 10. 8 and 10. 0, 2. 1, 8. Last, the corners due to map rolling. Okay, Nainika has been removed from the meeting. Someone just informed Nainika that she needs to accept in the calendar where all of you have accepted, clicked on yes. She needs to click on yes and only then she can rejoin my class. Because I got a message right now saying that my recording is starting, so Nainika will be removed. So I would request one of you to just message or call her personally and tell her that in the Google DPPIMD calendar, she needs to click on the yes invitation. On the invitation part, she needs to click on yes. Only then she can join, else she can't join. Okay, another grouping is this. This is, what is this called? Map rolling. And any more? This one is left. So we are going to group like this. Understood, everyone? Many of you might have grouped, since these 2 ones were left,
Many of you might have grouped like this or like this, but we'll always aim for the maximum grouping. So as correctly pointed out, we'll go for 4 grouping of ones. So tell me what will मैम इसमें लास्ट वाला वो स्क्वायर हम लोग 4 क्यों करेंगे? उसमें तो 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है जिसको हम लोग ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। कहाँ? ये तो 1 एम्प्टी रह गया, ये तो एक्स्ट्रा हमने पेयर्स बनाया। ये नहीं वाला मैम, वो वाला स्क्वायर जो आपने स्क्वायर में जो बनाया। ये वाला हाँ मैम, इसमें हम लोग वो 2 वंस तो ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो फिर से हम उसको क्यों 4 वंस में लेंगे? हम लोग सबसे पहले ये वाला ग्रुपिंग किए, सपोज अज्यूम करो मैप रोलिंग भी कर दिए, तो हम लोग का ये 1 अकेला रह गया है। हाँ करेक्ट अनुभव? हाँ तो ये 1 का ग्रुपिंग 2 तरीके से कर सकते हो, या तो तुम सिर्फ ये दोनों 1 को मिला सकते हो, हाँ या तो ये दोनों को मिला सकते हो, या तो प्रायोरिटी क्या था, कोशिश करना है 4 1 को ग्रुप करने का अगर साथ है। यहाँ पे तो ये 1 के साथ 3 1 है पास में, हाँ तो कर देंगे ग्रुप। ये वाला 1 2 बार ग्रुप हो रहा है, ये दोनों मैं 1 2 बार ग्रुप हो रहा है। मतलब अगर प्रायोरिटी सेटिस्फाई हो रहा तो फर्क नहीं पड़ता कितना एक्स्ट्रा वंस जा रहा। प्रायोरिटी सेटिस्फाई तो दूर की बात है। तुम्हारा अगर देख रहे हो कि कोई एक 1 अकेला बैठा हुआ है, वो ऑलरेडी 3 ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हो चुका है, फिर भी ग्रुपिंग करेंगे। My K-map does not depend on the fact that a particular 1 has been grouped how many number of times. It is in spite of that, regardless of that, we will group any 1 if it is lying alone. That is my number 1 priority, कि हमको 1 को ग्रुप करना है, भले ही उसके पास वाला 1 कितना भी ग्रुपिंग में इन्वॉल्व क्यों ना हो। ये पहला प्रायोरिटी। दूसरा प्रायोरिटी क्या है? चेक करना है कि हम लोग कितना बड़ा ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे ये वाला 1 नहीं होता तो हम लोग 2 का ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि ये वाला 1 है, ये भी है, ये भी है, और 4 का ग्रुपिंग पॉसिबल है, तो 4 का ग्रुपिंग करेंगे। ओके मैम, समझ गई। तो टेल मी, दिस इज सपोज दिस इज माय 1 implicant. My second implicant is map rolling. हम अपने मैप रोलिंग को 2 बार मार्क किया। हाँ। Second implicant is map rolling. Third implicant is ये वाला, and this is my 4th implicant. तो बताओ first implicant के लिए क्या होगा? And one more thing I said, whenever we are grouping 4 ones, when we are grouping 4 ones together, how many literals will be removed? I had said A is 1 literal, B is 1, C is 1, D is 1. So when I'm grouping 4 ones, how many literals are removed? 2 literals are removed. When I'm grouping 8 ones, how many literals are removed? 3. 3. तो यहाँ पे 4 ones को ग्रुप कर रहे हैं। नंबर 1 वाला CD होगा। CD होगा। नंबर 2 मैप रोलिंग है। नंबर 2 क्या होगा? B complement. B complement. D complement. D complement. D complement. नंबर 3 क्या होगा? इसमें भी 2 लिटरल रिमूव हो जाएगा। AC. AC। और नंबर 4 क्या होगा? A दो में complement. 2 B लिटरल रिमूव होगा सिर्फ। A complement B. A complement BD. A complement B। D। D. सबको समझ में आया? Yes ma'am. आगे बढ़े, दूसरे एग्जाम्पल में जाए। इसको इरेज मैम कर एक बार रहे फिर हैं। से बता। कौन वाला बताएं फिर से? अनुराग बोलो। मैम वो मैप रोलिंग वाला और वो स्क्वायर वाला। मैप रोलिंग वाला और ये वाला। हाँ अनुराग, जो बेसिकली अनुभव का क्वेश्चन था वही पूछ रहे हो क्या? नो मैम वो कैसे हुआ उसका इक्वेशन? आंसर ये कैसे आया? हाँ मैम एक बार देखो मैप रोलिंग जब कर रहे हैं हम लोग, मैप रोलिंग में व्हाट इज इन्वॉल्व? दिस द 4 कॉर्नर्स ऑफ द ब्लॉक इज इन्वॉल्व। अब देखो ये 4 कॉर्नर्स में, 4 कॉर्नर्स माने दिस रो, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो,
एंड फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम. अब सबसे पहले देखो फर्स्ट रो एंड लास्ट रो में which variable is not changing. ऐसा कोई वेरिएबल है फर्स्ट रो और लास्ट रो में जो चेंज नहीं कर रहा है? बी. तुम्हारा बी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है? गलत लिख दें क्या? मैम वो सेकंड वाला टर्म है. हाँ सॉरी. तो बी चेंज नहीं कर रहा है, सो बी इज 0 फॉर बोथ ऑफ देम, सो बी कॉम्प्लीमेंट. और फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा है? मैम डी. डी यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सो डी कॉम्प्लीमेंट. हम लोग जब भी किसी भी वंश को ग्रुप करते हैं टुगेदर, वो वन जो ग्रुप फॉर्म किया है कौन सा रोज और कौन सा कॉलम को लेकर फॉर्म किया है, वो पर्टिकुलर रोज और कॉलम में हम लोग देखेंगे कहाँ पे हम लोग का वेरिएबल चेंज हो रहा है और कहाँ पे वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है. जैसे यहाँ पे यू जस्ट है बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट. अब इसका देखो, इसमें हियर थर्ड एंड फोर्थ रो इज इन्वॉल्व एंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम इज इन्वॉल्व. नाउ थर्ड एंड फोर्थ रो में which variable is not changing? A is not changing. Yes, तो ma'am. A लिख दिए. और थर्ड और फोर्थ कॉलम में which variable is not changing? मैम सी. C is not changing, so A C. या मैम गॉट इट. थैंक यू मैम. Can we move forward? Anyone has any further questions? No? I'll move. Next example में जाए. I have class with all of you tomorrow also, no? I have class. Yes ma'am, tomorrow also. Who is Vishnu Dev Ghosh? He's a lateral entry. Yes ma'am. Alright, coming to my last example of K marks for today. This is very simple. This is actually kind of a more detailed explanation of अनुभव का जो last question था, उसी को लेती है somewhat. I hope all of you are noting down whatever examples I'm telling over here. Yes ma'am. Alright, so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So 1, 5, 7, 9, 11, 13 and 15. पहला बोलो क्या होगा? तो दिख रहा है पहला वाला. Second column. सेकंड कॉलम. दूसरा बोलो क्या होगा? मिडिल 4. वो नीचे 4 है जो. 14, 15, 19. थर्ड कॉलम में 14, 15. हाँ, एक ये होगा. अनुभव तुम जो अभी पूछे हमसे पहले पूछे थे कि कितने बार हाँ, कर हाँ. सकते हैं, फिर करेंगे हम लोग 4 बार. समझ में आया अनुभव? हाँ मैम. जितने बार कोशिश करेंगे, एक वन को तो अकेला छोड़ना नहीं है. छोड़ना तो छोड़ना नहीं है, जितना बड़ा ग्रुप फॉर्म कर पाए. भले ही बाकी जो वन का कंपेनियंस है कितने बार भी क्यों ना इन्वॉल्व हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. हम लोग को मैक्सिमम ग्रुप फॉर्म करना है. इसका फटाफट बोलो क्या एक्सप्रेशन आएगा. अज्यूम ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. अनुराग कहेगा, नो वन एल्स विल से. अनुराग बोलो 1 का क्या होगा? मैम वो होगा सी कॉम्प्लीमेंट डी. सी कॉम्प्लीमेंट डी. 2 बोलो. ये 2 होगा मैम ए
AD, और 3 बोलो। ये होगा BD, B। D। वेरी सिंपल, वेरी इजी, सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now coming to something known as don't care condition in K-map. We have something known as don't care condition. Now what is this don't care condition and how does it help? क्या होता है? Suppose we have a K-map. Suppose we have a 8-cell K-map. Now उस 8-cell K-map में when you are suppose you're trying to do a particular grouping. Suppose हम लोग का 8-cell K-map है and हमको एक ग्रुप यहाँ पे हम लोग का suppose है 1 1 and 1 and 1. ठीक है, अज्यूम करो ऐसा कुछ है। Now, तुम लोग को पता है कि सपोज अगर यहाँ पे भी एक 1 होता और अगर यहाँ पे भी एक 1 अगर होता, हम लोग का आराम से 4 का ग्रुपिंग 2 बार हो जाता। Yes, ma'am. अगर होता हाइपोथेटिकली, अगर यहाँ पे 1 होता, है नहीं तो कैसे ग्रुपिंग होगा? ऐसे और ऐसे। This will be a grouping. But if I had the opportunity to keep a single one here and single one here, then our grouping would have been better. We would have made a group like this and we would have made a group like this. So don't care conditions are certain conditions in K-map which will enhance your grouping, which will make our grouping easy, which will make our groups of ones bigger. And जैसे अगर हम लोग 4 1 बना रहे तो we can see हम लोग का 2 लिटरल रिमूव हो रहा है। अगर हम लोग 8 का बना रहे तो 3 रिमूव हो रहा है। तो जितना बड़ा ग्रुपिंग होगा हम लोग का लॉजिकल एक्सप्रेशन उतना ज्यादा क्या होगा? उतना छोटा होगा, उतना सिंपल होगा, उतना एफिशिएंट होगा। हम लोग को लॉजिकल एक्सप्रेशन से सर्किट डायग्राम बनाने में उतना और आसान होगा। सो जब भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली अभी तक जो भी बताए हैं यू ऑल हैव अंडरस्टूड, आई एम अज्यूमिंग। डोंट केयर कंडीशन अगर एग्जाम में आएगा तो कैसा आएगा और उसमें हम लोग के मैप में कैसे प्लेसिंग करेंगे उसको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बेटर। हम दोनों समझाएंगे कि अगर डोंट केयर नहीं यूज कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, डोंट केयर अगर यूज करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो लेट्स टेक अ 3-cell K-map where we have 2, 3, 4 and 5. We have 2, 3, 4 and 5 प्लस अभी तक कुछ प्लस बोल के हम लोग का आ नहीं रहा था, अभी तक वी जस्ट हैड इतना ही एंड यहीं पे देख के वी वर फॉर्मिंग आवर K-map. नाउ don't care condition is never, this is your necessary condition and don't care जो है which is your 6 and 7, this is a not a necessary condition. इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जब K-map प्लॉटिंग करेंगे तो K-map जब प्लॉटिंग करेंगे तो 2, 3, 4, 5 के जो सेल्स है वहां पे हम लोग को 1 लिखना इज कंपल्सरी when we are plotting our K-map. So here we have 2, 3, 4 and 5, यही है ना? ना लास्ट ईयर कौन ना वो तो अब ठीक हुआ ना? हाँ यस मैम सही। दिस इज योर नेसेसरी कंडीशन, तुमको इसका प्लॉटिंग करना ही पड़ेगा।
But this is not a necessary condition. This is an optional condition. Exam में या तो बोलेगा sigma d or we can either write sigma 5. This is also don't care condition. Sigma 5 6,7. So this is 6 and 7. तो don't care में यहाँ पे we will not don't care को symbolize कैसे करते के मैप में? We will not write 1 or 0. We will give a cross over here. Why? Because right now हम लोग जो K map अपना बना रहे, we are forming the K map using our min terms. Min terms मतलब जहाँ पे हम लोग का output high है, we are forming writing 1 1 1 1. Suppose K map बनाना हुआ जहाँ पे we are forming a K map using max terms, माने pos form, तो वहाँ पे we will not write 1 1, तो we will write 0 0 0 0. So don't care में जो cross है, the cross means it can be either 1 or 0. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे because we are using min terms, so here we will consider the cross is 1. Had we been using max terms, we would have considered the cross as 0. So now we will see both the situations. Suppose don't get नहीं use करके, if we do a plotting like this, इसका क्या होगा? A B complement प्लस इसका क्या होगा? A complement B. Basically A is or B. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If we do not use this, if we use this, don't care में if we are using this, that means ये grouping हुआ और ये grouping हुआ, we are considering the cross as 1. तो अब क्या आएगा? This is A and this is B. So which is simpler, A is or B or A plus B? A plus B. Now this is it. This is only don't care. Is it tough? मैं मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो. मैम बोल रहा हूँ कि लास्ट में जो हम लोग डोंट केयर यूज किए थे ना, तो ओवर तो हमको पता नहीं ना ओवर हाई है कि लो है, तो हमको पता कैसे चलेगा अगर सेम मतलब सेम ग्रुप का तो पेयरिंग नहीं हो रहा है? इससे पता चलेगा. ये क्या है? इसमें सिग्मा एम क्या है? मैक्स मैक्स मीन टर्म मिन टर्म कब यूज करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सम. प्रोडक्ट ऑफ सम. तुम्हारे मृगांकों का पूरा गंडगोल हो गया है सब कॉन्सेप्ट. बस इस मिन टर्म को होता है सम ऑफ प्रोडक्ट में. सम ऑफ प्रोडक्ट में in which situation do we consider the output? When the output is बॉन्ड 1. बस सॉप माने आउटपुट 1. आउटपुट 1 माने 2 3 4 5 जो सेल्स है वहां पे 1 होगा. अगर यहाँ पे हम लोग लिखते पाई ऑफ m माने मैक्स टर्म और पाई ऑफ m 2 3 4 5 अगर होता तो यहाँ पे 0 0 0 0 होता, और अगर 0 0 0 0 होता तो ये क्रॉस माने तब 0 होगा. और क्योंकि सिग्मा ऑफ m है ये 1 1 1 1 है तो क्रॉस होगा 1 1. ये देख के तुमको समझ में आएगा कि हम लोग का जो डोंट केयर है वो 0 होगा कि 1. स्मॉल m है तो डोंट केयर 1 होगा, कैपिटल M है तो डोंट केयर 0 होगा. यस मैम समझ गया. एनीवन डोंट केयर जिसको समझ में नहीं आया होगा जस्ट होल्ड ऑन अ मोमेंट. Okay. Anyone who will understand this? बट मैम अगर डोंट केयर कंडीशन यूज कर रहे या नहीं कर रहे उससे तो आंसर में डिफरेंस आ रहा है ना. वो A प्लस भी आ रहा है, A और भी आ रहा है, तो सही कौन सा रहेगा? देखो अगर सही तो तुम्हारा लॉजिकली अगर देखा जाए डोंट केयर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. सी राइट नाउ तुम लोग सिर्फ बेसिक ऑफ एनालॉग डिजिटल पढ़ रहे हो. स्मॉल सर्किट्स. Suppose if I study 6 variable, 7 variable, 8 variable, large circuits,
वहां पे डोंट केयर इज बिकम्स ए नेसेसरी कंडीशन, बिकॉज इन दोस बिग सर्किट्स हम लोग 2 1 को ग्रुपिंग करके कुछ नहीं होगा, हम लोग को 16 वंस 32 वंस को ग्रुप करना होगा. सो यहाँ पे इवन इफ दिस इज नॉट देयर एंड इफ दिस इज द आंसर, इट्स नॉट अफेक्टिंग मच. So right now don't care you will only use if it is given in the exam. Basically why I taught don't care was to tell you or don't care use karke how my K-map became simpler, how my grouping became big. That is it. When you use don't care in a particular K-map, it shows how a grouping becomes big, how the logical expression becomes more efficient. Answer will obviously come different. It's not that this is wrong or this is right. What is the difference? This is more complex, this is more easy. This is the difference. ये गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ये भी तुम्हारा गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है. ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा इजी है, क्योंकि हम लोग एक एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें यूज किए हैं. और कुछ So ma'am, even if you use the don't care condition, if you don't use, the answer will come as A B dash and A complement B. So both the other answers will be taken as correct, right? Both are correct. लेकिन Devjita, if in the exam they give you to use a don't care condition and then you don't use, then exam में तुम्हारा ये आंसर गलत हो जाएगा. अच्छा ठीक है. एग्जाम में अगर ऐसा है F इज इक्वल ए बी सी सिग्मा M 2 3 4 5 प्लस सिग्मा D और सिग्मा 5 6, 7 माने you have to use don't care condition in the K-map. कंपल्सरी है यूज करना. अगर ये नहीं रहता, अगर डोंट केयर कंडीशन नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, तो तब तो तुम डोंट केयर यूज, तब तो देयर इज नो सवाल ऑफ यूजिंग डोंट केयर. देन तुम लोग नॉर्मली सॉल्व करते एज और बी आता. एग्जाम में अगर दिया हुआ है डोंट केयर और तब भी यूज नहीं कर रहे हो, देन तो आंसर तुम्हारा गलत आएगा. अच्छा ठीक. ओके. अंतरा समझ में आया? यस मैम. Anyone who didn't understand don't care? मैम एक रैंडम सा क्वेश्चन था. अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया हुआ है, लाइक नॉट नेसेसरी वाला ये केस, तो भी उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं डोंट केयर कंडीशन? अगर किसी क्वेश्चन में डोंट केयर नहीं दिया भाई, ये पूछ रहे हो? यस मैम. तो यूज अगर करना चाहोगे तो डोंट केयर कहाँ बैठाओगे? अपने मन से कहीं भी बिठा दोगे? वही रैंडम था मैम. नहीं, डोंट केयर अगर यूज होना होगा तो तुम लोग को बता दिया जाएगा कि इस सेल में डोंट केयर है. नहीं यूज होना होगा तो कुछ नहीं बताएंगे. यूज होगा देन यू विल बी इन्फॉर्म्ड कि सेल नंबर 7, सेल नंबर 12, सेल नंबर 13 में डोंट केयर है. और अगर नहीं कुछ बोला गया तो नहीं है, नॉर्मली इसे सॉल्व करते हो, नॉर्मली सॉल्व करोगे. और कोई डाउट्स? नहीं? ओके. इसके बाद वी कम टू K-map यूजिंग मैथ्स टर्म्स. आज पढ़ाएं या कल पढ़ाएं? हम आज ही पढ़ा दीजिए. आज ही कर दी. हाँ, अवश्य होगा. तो हम कल पढ़ा देंगे. अगर आज पढ़ा दे तो कल छुट्टी दे देंगे. हाँ मैम. क्लास नहीं हुआ, तुम लोग को हम बोल के रखे कि सब्जेक्ट कितना टफ है, सिलेबस कितना बाकी है, कितना सप्ली उठता है. इंटरेस्टिंग नहीं लगता है क्या जब पढ़ाते हैं? हो जाएगा मैम, हो जाएगा. हाँ मैम हो जाएगा. मैम पूजा के बाद एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे आप. अच्छा जी. मैम कल तो चतुर्थी है. हाँ मैम. अच्छा एक काम करते हैं, आज कल हम सिर्फ K-map यूजिंग मैथ्स टर्म पढ़ाएंगे. हार्डली 15 मिनट लगेगा. कल सिर्फ 15 मिनट हमको अपना देना, सिर्फ 15 मिनट्स. क्या आज पढ़ा दें क्या? हम आज ही करवा दीजिए. हाँ मैम आज ही आज कर. ही मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा करवा दिए जरूरत पड़ने पर.
तो तुम लोग का इसके बाद तो क्लास भी है ना? वो क्लास नहीं 3 बजे से रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई। ভাই রেকর্ডিং চলছে। ना मंद बुद्धि हो एकदम। कल का अच्छा एक काम करते हैं, आज हम केम अप यूजिंग मैक्सिमस पढ़ा देते हैं, ठीक है? लेकिन कल थोड़ा 15 मिनट देना प्लीज, सिर्फ 15 मिनट। एक छोटा सा चीज बताएंगे फिर हम छोड़ देंगे। 15 मिनट से ज्यादा हम लेंगे ही नहीं। अगर 15 से ज्यादा लिए देन जस्ट एंड द कॉल एंड लीव ऑल ऑफ यू। टुमारो जस्ट 15 मिनट्स, ठीक है? मैम आज शाम को 15 मिनट ले लीजिए ना। अरे यार तुम लोग को मतलब कल क्लास करना ही नहीं है क्या? हाँ मैम। पूजा तो मैम एक बार की एडवांस पूजा चला जाएगा तो फिर क्लास तो होते रहेंगे। ओ हाँ मैम एग्जैक्टली। हाँ मैम। पूजा तो अगले साल भी आएगा। एक बार कुछ मार्क्स खराब हो गया तो उसमें क्या बोलोगे? खराब नहीं होगा, डोंट वरी। जब तक हम हैं तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे, कुछ किसी का कुछ खराब नहीं होगा। सो वी हैव केम अप यूजिंग मैथ्स टर्म्स, वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ है नहीं, फटाफट बता देते हैं इसको हम। एट से स्टार्ट करते हैं। सो अब देखो, नाउ सपोज क्वेश्चन में अगर दिया है f इज इक्वल टू सिग्मा m, 3 4 5 6 7। सपोज क्वेश्चन तुम लोग को ऐसा दिया है, f इज इक्वल टू सिग्मा m 3 4 5 6 7 और साथ में लिखा है सॉल्व द के मैप using maths terms. They have written the question, solve the K-map using maths terms, but question में दिया है f is equal to sigma m 3 4 5 6 7. So there's a little bit of contradiction. They're asking you to solve using maths terms, but they have given min terms over here. कैसे करोगे? बाकी सारा ले लेंगे। जीरोस को कंसीडर करेंगे। मतलब सिग्मा m क्या हुआ? 0 1 2। तो here we have, तो मतलब 3 4 5 6 7 में 1 है, इसमें 0 है। और हम लोग को जब बोला गया है के मैप यूजिंग मैथ्स टर्म से सॉल्व करना है, we will group the zeros together. तो क्या होगा? ना भी ग्रुपिंग the zeros लास्ट में जाएगा। अंतर आप ऐसे बोलो। 2 है लास्ट में जाएगा। 0 will go to the last position। जीरो का प्लेसमेंट। अब ठीक है? हाँ So here we will not try and complicate by saying that, हम लोग जब पॉज फॉर्म पढ़ रहे थे हम क्या बताए थे कि जब 0 होगा, नॉर्मली सॉफ्ट फॉर्म में क्या था, a अगर 0 है, a 0 तो a कॉम्प्लीमेंट, a अगर 1 है तो a। पॉज पे पूरा उल्टा था कि a अगर 0 है तो a अगर 1 है तो a कॉम्प्लीमेंट। ये बताए थे ना? यस मैम। हाँ मैम। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे सिचुएशन को। ऑलरेडी तो 0 ग्रुप कर रहे हैं, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। हम लोग 0 को कॉम्प्लीमेंट ही पकड़ेंगे और 1 को नॉर्मल पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? f कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बिकॉज हम लोग का आउटपुट वी आर कंसिडरिंग दोज आउटपुट विच इज लो। लो माने 0 माने कॉम्प्लीमेंट, तो f कॉम्प्लीमेंट पकड़ेंगे इसको हम लोग। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? व्हाट विल दिस बी? दिस विल बी a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट c। यही होगा ना? हाँ हम प्रोडक्ट ऑफ सम होगा ना। हम बता रहे हम उस पे भी आते हैं। तो ऐसा होगा। नाउ अब क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ सम में हम ये बताए थे तुम लोग को, वेयर इफ इट इज 0 इट विल बी a, बट इफ इट इज 1 इट इज a कॉम्प्लीमेंट। देवली ना, वही बताए थे ना? हाँ मैम। बट यहाँ पे हम उल्टा लिख दे रहे। इसको सीधा करने के लिए क्या करना होगा? We will use
De Morgan's theorem on both sides. We will use De Morgan's theorem on both sides. तो क्या हो जाएगा? होल कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे. F is equal to A complement B complement plus A complement C. Using De Morgan's theorem on both sides, F complement complement A complement B complement plus A complement C का whole complement, F double complement F हो जाएगा. इसको क्या होगा बोलो? A complement B complement whole complement plus will become into Yes, ma'am. हाँ मैम. A complement C whole complement, A complement B का whole complement क्या होगा? A plus B हाँ, yes. हाँ मैम. into A plus C complement. So why I did this because क्योंकि ऑलरेडी के मैप में तुम लोग कंफर्टेबल हो 1 को ग्रुपिंग करने में, 0 को ग्रुपिंग कर रहे हो, ठीक है. 0 को ग्रुपिंग करने के बाद डोंट गो इनटू द कॉम्प्लिकेशन. अच्छा फर्स्ट फॉर्म में तो 0 माने A, 1 माने कॉम्प्लीमेंट. 0 को ग्रुपिंग करके जैसे नॉर्मली लिखते हो वैसे ही लिखो, बिंदास, कंफ्यूज मत हो, वैसे ही लिखो. बस डिफरेंट क्या होगा कि यहाँ पे F कॉम्प्लीमेंट होगा बिकॉज हम लोग 0 को लेके हम लोग आउटपुट ले रहे हैं. F कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हम लोग का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन के मैप से आया वो लिखेंगे. अब पॉस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम ऑन बोथ साइड्स. हो गया हम लोग का पॉस फॉर्म. मैम ये डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं. डायरेक्टली भी कर सकते हैं. डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली कैसे करेंगे बताओ? यहाँ पे हम लोग जो आया था यहाँ पे डायरेक्टली एक जहाँ पे हम लोग का एंड रहेगा उसको और कर देंगे, और जहाँ पे 0 है इसको नॉर्मल पकड़ेंगे. तो यहाँ पे क्या था? A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और बीच में एंड था, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? बस A प्लस B. जैसे देवलीना बोल रही है, शी इज सेइंग वेरी करेक्टली. तो अगर 16 या 32 सेट होगा तो लिख के फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करोगे? नॉट पॉसिबल. एक एग्जांपल दिखाते हैं जहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली करके हमको आंसर बताओगे. वी विल नॉट यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम ऑन बोथ एंड्स. वी विल जस्ट सी द के मैप, वी विल ग्रुप द zeros together and from the के मैप we will write the answer. इतना 14 16. सो तुम लोग को निकालना है मैथ 1 3 4 5 9. We have 5 9 11 14 11 14. इसका आंसर बताओ. के मैप यूजिंग मैथ्स टर्म, यू विल ग्रुप द zeros together. हम तुम लोग को बोले हैं 1 कहाँ पे होगा, बाकी जगह तुम लोग को 0 करके ग्रुप करके हमको डायरेक्टली बताओ आंसर क्या आएगा. No using De Morgan's theorem. Everyone. मैम एक बार वैल्यू बोलिए ना, वो सर ब्लर आ रहा है वो बोर्ड. 1 3 4 5 11 14 15. ये सिग्मा ऑफ एम है, मिन टर्म है. थैंक यू. हमको मैथ्स टर्म पहले बताओ कहाँ पे आएगा. मैम आपका वीडियो आ रहा और जा रहा है. माने सबके लिए ऐसा हो रहा है? হেজি হচ্ছে হেজি. अभी ठीक है क्या अंतरा? हाँ पूरा ब्लड है. थोड़ा सा ब्लड है. मैम कुछ दिखाई नहीं दे কিছু দেখতে পাচ্ছি না ম্যাম. अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं मैम.
मैम आपका वीडियो लैग हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक हो रहा है, ठीक हो हाँ मैम। ठीक है अब मैम ठीक है। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ मैम आपके जल्दी जल्दी आंसर बता बिफोर द वीडियो स्टार्ट्स लैगिंग अगेन। बोलो मैक्स टाइम कहाँ पे होगा? जीरो कहाँ पे? 0 2 7 मैम 0 2 6 7 0 2 0 2 6 7 7 8 8 10 12 10 12 12 30 12 13 13। अब बताओ what all will be group? मैम 4 कॉर्नर्स में होगा आप रोलिंग और मैम 2 पेयर होंगे। 12 13 and 7 हो 6। गया? नाउ टेल मी डायरेक्टली, हमको मैप से हमको आंसर बताओ। है ठीक है? B प्लस B होगा। बी 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 कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे क्योंकि जीरो में फर्स्ट फॉर्म में जीरो माने नॉट बी, और यहाँ पे बी जीरो हो बोथ, तो नॉर्मली क्या होता बी कॉम्प्लीमेंट इनटू डी कॉम्प्लीमेंट। मैथ्स टर्म में जा रहे हैं तो इनटू विल बिकम प्लस एंड कॉम्प्लीमेंट विल बी नॉर्मल, तो बी प्लस डी। करेक्ट? यस मैम। इसका बताओ। A प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट। C कॉम्प्लीमेंट। लास्ट वाला का बताओ। A complement plus B complement plus C प्लस C। वेरी सिंपल, इज इट नॉट? यस मैम। Write the entire thing and then use De Morgan's theorem. Directly map the. Anyone who didn't understand this? Anyone who didn't understand this? So this concludes your K-map. K-map is over. नेक्स्ट क्लास से वी विल, याद है हम लोग वी हैड डन क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स बताए थे तुम लोग को हम एग्जांपल्स के साथ। यस मैम। हाँ मैम। वी विल पिक अप फ्रॉम देयर। ओके मैम। ओके, सो के मैप इज ओवर। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। रिकॉर्डिंग्स भी है, डाउट होगा यू कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स, हम है, यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, सो यहाँ पे आज का क्लास खत्म करते हैं और रिकॉर्डिंग भी हमको खत्म करने दो पहले। एक सेकेंड वेट, लेट मी टेक द अटेंडेंस। ओके फाइन, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। अब बताओ कल का बताओ, क्या तुम लोग का क्या है?